تھا۔ اللہ اکبر۔ او بیٹیو تم بھی آئی ہو سننے کے لیے، ذرا اس بات کو توجہ سے سننا۔ علی کہتے ہیں فاطمہ تم نے مانگا کیوں نہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے اے علی اگر میں روٹی مانگ لیتی تو مجھے ڈر یہ تھا کہ قیامت کے دن اللہ مجھے کھڑا کر کے یہ نہ پوچھے فاطمہ 3 دن کا فاقہ کیا ہوا، تو نے غربت کی شکایت علی سے کر دی تھی، اگر میں تم سے روٹی مانگ لیتی تو قیامت کے دن اپنے رب کو کون سا چہرہ دکھاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے، حضرت علی کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے، لیکن پوری زندگی کبھی حضرت علی کو شکایت کا موقع نہیں دیا ہے۔ میری قوم کی بیٹیوں تم سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، تمہارا حال یہ ہے کہ میاں گھر نہیں، بیوی کو ڈر نہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں، دل میں حیا نہیں ہے، نظروں کا وقار تمہارا جا رہا ہے۔ خدا کا واسطہ اپنے اوپر پردے کو لاگو کر لو، شرم حیا کو مسلط کر لو، تم یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا، حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہوں گی، مصطفیٰ بھی ہوں گے، اگر پردے کے بارے میں پوچھا گیا تو بتاؤ کون سا جواب دو گی، کون سا جواب دو گی، اور کون سا چہرہ حضرت فاطمہ کے سامنے لاؤ گی۔ آج بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ شادی بیاہ کے اندر دیکھو سروں پہ دوپٹے تو شاہی بڑی بات ہے، اب تو گلوں میں دوپٹے نظر نہیں آتے ہیں، لباس ایسے بے حیا ہے کہ دیکھنے والوں کو حیا آتی ہے، پہننے والوں کو حیا نہیں آتی ہے، لا کے دینے والوں کو حیا نہیں آتی ہے۔ اور یاد رکھو خدا را مہربانی کرو پردے کو لازم کر لو، پردے کو اپنے اوپر لاگو کر لو، شوہر کی فرما برداری کرو، شوہر کا احترام کیا کرو۔ ساری زندگی نبی کی بیٹی نے علی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، لیکن اپنی پوری زندگی کبھی علی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ کون فاطمہ ہے؟ کئی دن کا فاقہ ہے، فجر کا وقت ہے، مصلی بچھایا ہے، جیسی نماز کے لیے نیت باندھی نبی کی بیٹی نے، حضرت علی کی دہلیز ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، فجر کی نماز میں کھڑی ہوئی ہے، جیسی نیت باندھی ہے، اللہ اکبر، چکر آیا، کمزوری کی وجہ سے مصلی سے نیچے گر جاتی ہیں، نیچے گری ہے کھڑے سے، حضرت علی کی آنکھ کھلی ہے، دیکھا حضرت فاطمہ الزہرا مصلی پہ گری ہوئی ہے، توڑ کر کے گئے، کان لگا کے دیکھا، نبی کی بیٹی کی زبان پہ آہ نہیں تھی، کوئی شکوہ نہیں تھا، گری ہے مصلی کے اوپر، کھڑا نہیں ہوا گیا، پھر بھی کہتی ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، جس حال میں تو رکھے اس میں فاطمہ راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا دیکھنا تھا، علی کا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، کہتے فاطمہ یہ حال کیسے ہوا؟ کہتے علی آج 8 دن ہو گئے ہیں، فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا ہے، کمزوری اتنی آ گئی ہے کہ اب کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے، اور میری قوم کی بیٹیوں 6 بار پیٹ بھر کے کھاتی ہو، ایک بار مصلی پہ کھڑی نہیں ہوتی ہو، پورا دن کھایا کرتی ہو، خدا کی یاد صبح سے شام تک نہیں آیا کرتی ہے، یہ نبی کی بیٹی ہے، 8 دن کا فاقہ ہے، مصلی پہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، لیکن نیت باندھ کر کھڑی ہوئی، مصلی سے گری ہے، ادھر فجر کا وقت ہو گیا ہے، حضرت علی کے دل میں خیال آیا، علی چل آج کچھ تلاش کر کے لانا ہے، فاطمہ کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، یہ خیال آیا، کمانے کے لیے نکلنا چاہتے تھے، اچانک مسجد نبوی سے مکبر کے تکبیر پڑھنے کی آواز آ جاتی ہے، خیال آیا علی نماز پڑھ پہلے اس کے بعد نکلنا ہے، پھر سوچتے ہیں اگر نماز پڑھنے گیا تو نبی سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی فاطمہ کا حال پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ یہ خیال آیا ہے، یہ سوچ کر کے حضرت علی مسجد نبوی میں سب سے پچھلی صف میں کھڑے ہوئے نماز پڑھی ہے حضرت علی نے، اور سلام پھیر کر کے چپکے سے فوراً نکلے، گھر کی طرف آئے، جیسی گھر کی طرف آئے قدم رکھنا چاہتے تھے چوکھٹ میں، خیال آیا علی کے دل میں اگر فاطمہ کہیں گی علی کچھ انتظام کر کے لائے تو کیا جواب دوں گا؟ بس اس خیال کا آنا تھا، علی نے قدم واپس کر لیا اور نکل گئے بازار میں، مزدوری ڈھونڈتے رہے، کوئی مزدوری نہیں ملی ہے، کوئی دولت علی کو نہیں ملی، کھانے کا کچھ انتظام نہ ہوا، جب واپس آنے لگے ہیں راستے میں ایک شخص ملا، ہاتھ میں اونٹ کی رسی تھی، اس نے کہا علی اس اونٹ کو خریدو گے؟ آپ فرماتے میرے پاس پیسے نہیں ہے، اس نے کہا ادھار لے لو، جب بیچ دو تو تب میرے پیسے دے دینا۔ اللہ اکبر۔ اس شرط پہ سودا ہو گیا، آپ نے اونٹ خریدا ہے، آگے چلے ہیں، دوسرا خریدار مل گیا، کہا بیچو گے؟ کہا ہاں، 140 درہم میں اونٹ بیچ دیا گیا۔ آپ نے اپنے غلام قمبر کو بلایا، بلانے کے بعد کہا جاؤ یہ 100 درہم جا کر کے اس کو دے آؤ جس سے ہم نے اونٹ خریدا تھا۔ قمبر پوری گلی میں ٹہلتا رہا، سارے راستے چھان مارے، لیکن اونٹ بیچنے والا نہیں ملا۔ جب نہیں ملا ہے حضرت علی نے ان 100 درہم کو دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں واہ بھائی واہ، اب تک تو صرف فاقے کی فکر تھی، اب یہ امانت کی بھی فکر ہو گئی ہے، اب بتاؤ اگر اس حال میں علی مر گیا تو پھر حساب کہاں سے دے گا؟ یہ سوچ کر کے پریشان ہے کہ اس پیسے کا کیا کیا جائے، کسے دیا جائے، یہ امانت کا پیسہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سوچتے آ رہے ہیں، گھر کی طرف آئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں آپ کی دہلیز پہ مدینے والے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے خاتون
जन्नत भी है। दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। हजरत अली आए हैं, जैसे करीब पहुंचे हैं मेरे नबी ने फरमाया था, अली तिजारत का किस्सा तुम सुनाओगे या हम सुना देते हैं? अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अभी अली आए हैं, आका फरमाते हैं तिजारत की बात तुम बताते हो या हम बता देते हैं? अल्लाह अकबर। हजरत अली ने कहा था, या रसूल अल्लाह, अली से बेहतर आप जानते हैं, आप बताइए। मेरे नबी फरमाते हैं, अली जरा सच बता कि तूने कभी ऊंट बेचने वाले को देखा? कहते या रसूल अल्लाह कभी नहीं देखा। कभी खरीदने वाले को देखा? आका जी कभी नहीं देखा है। कहा फिर बता तो सही कौन थे? कहते अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। मेरे नबी फरमाते हैं जिब्रील। मेरे नबी फरमाते हैं सुनो ए अली, जो ऊंट बेचने आया था वो जिब्राइल था, जो ऊंट खरीदने आया था वो मीकाईल था। कहते हुजूर ये उसके 100 दिरहम बाकी है। मेरे नबी फरमाते हैं अली ये 100 दिरहम भी तुम्हारे हैं, मुनाफे के दिरहम भी तुम्हारे हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हजरत अली कहते हैं आका मगर ये हुआ क्यों? जैसे इतनी बात कही ना, हुआ क्यों? मेरे नबी फरमाते हैं अली, जब फातिमा ने नियत बांधी थी तब भी खुदा देख रहा था, जब फातिमा मुसल्ले पे गिरी थी तब भी खुदा देख रहा था, जब उसकी जबान पर कोई नाशुक्री का जुमला नहीं आया, अल्लाह की हम्द का जुमला था तो खुदा सुन रहा था। और जब फातिमा ने हाथ उठा के कहा था या अल्लाह बच्चों के लिए रिस्क का इंतजाम कर दे, तब भी खुदा ने सुन लिया था। ए अली तुम इंतजाम तो करके ना ला सके, लेकिन फातिमा के खुदा ने सारा इंतजाम करके भेज दिया। तवज्जो है? और थोड़ी देर सुनेंगे? नहीं सुनना चाहते हो तो बोले या रसूल अल्लाह, और अगर सोना चाहते हैं तो कह दीजिए जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह सब सुनने के मूड में है। अब मचल के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये सारी जिंदगी हजरत फातिमा ने अली के साथ गुजारी। और कौम की बेटियों, कभी अपने शोहर से हजरत फातिमा ने कोई शिकवा नहीं किया। पूरी जिंदगी शोहर की रजा में राजी रही। सैयदुल अंबिया की बेटी, वो जिब्रील जिनके दरवाजे पे आए तो उनके झूले झुलाते हैं, जिनकी चक्की फरिश्ते चलाते हैं, ये वो फातिमा है। खुदा की कसम। और कौम की बेटियों, पर्दे का एहतमाम करो और सरों पे दुपट्टा रखा करो। ये याद रखना एक दिन तुम्हें भी मरना है। अल्लाह के बारगाह में हाजिर होकर के अपने हिसाब का, अपने अमाल का हिसाब देना है। आओ एक मुस्तफा की सच्चे आशिक की घरवाली की कहानी सुना दो। तवज्जो है? ये बोलने की आवाज किधर किधर से आ रही है? बात समझ में नहीं आ रही? जरा तुम बोल दो या रसूल अल्लाह। इतनी जोर से बोलो जो इनके बोलने की आवाज नहीं आई। जरा कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। और पर्दा कितना अहम है, पर्दा कितनी अजीम दौलत है। जरा तवज्जो कीजिए। एक मुस्तफा के गुलाम है, जंग के महाज पे जाने लगे, अपनी बीवी से कहने लगे शरीक हयात में जा रहा हूं, लेकिन मेरी मर्जी के बगैर घर से कदम मत निकाल देना। क्या कहा उन्होंने? मेरी मर्जी के बगैर घर से कदम मत निकाल देना। ये कह के शोहर तो चले गए। कुछ दिन गुजरे थे, दरवाजे पे दस्तक हुई। बच्ची कहने लगी कौन? कहा तेरा भाई आया है। कहा किस लिए? कहने लगा कि बाप की तबीयत खराब है, मेहरबानी कर, बाप ने तुझे देखने के लिए बुलाया है। इतनी बात जैसे कही ना, बेटी रोने लगी, कहने लगी मेरे सरताज की इजाजत नहीं है, मेरे शोहर ने मना किया था, मेरी मर्जी के बगैर कदम मत निकाल देना। मेरे बाप से जाके मेरी तरफ से माफी मांग के कह देना मजबूर हो नहीं आ सकती। भाई चला गया। बाप ने कहा बेटे लाया नहीं? कहने लगा उसके शोहर की इजाजत नहीं है। अगले दिन जब सांसें थमने लगी, लोगों ने कहा यार एक बार और जाके देख ले, शायद बाप के मरने की खबर सुन के बेटी आ जाए। गया, फिर गया कि कहने लगा बहन अब तो चल ले, बाप के बचने की उम्मीद नहीं है, लगता है अब वो खत्म, इंतकाल हो जाएगा उनका, आखिरी बार तुझे देखना चाहते। बेटी रोई, रो के कहती मेरे भाई मैं शोहर की मर्जी के बगैर घर से कदम नहीं निकाल सकती। अल्लाह अकबर। बेटा वापस गया। बाप ने बेटे को खाली हाथ आते देखा, कुछ सांसों का मेहमान था, हिचकी ली, जिस्म से रूह निकल गई, इंतकाल हुआ। लोगों ने जनाजा तैयार किया। जब जनाजा तैयार हो गया तो कुछ लोगों ने कहा यार जीते जीत न सही,
कम से कम मरने के बाद ही बेटी के दरवाजे तक इसका जनाजा ले चलो। कहां लेकर के गए? बेटी के दरवाजे पे जनाजा लेकर के चले। कहा जीते जी ना सही, मरने के बाद ही बेटी के दरवाजे तक जनाजा लेके चलो। साहिब जब जनाजा बेटी के दरवाजे पे लाया गया, दरवाजे के बाहर जनाजा था। लोगों ने आवाज दे के कहा था, बेटी अब तो कम से कम दरवाजे से बाहर आ जा, तेरे बाप का जनाजा दरवाजे के बाहर रखा हुआ है। इतना सुना बेटी की चीख निकल गई, रो के कहने लगी, जब यहां तक लाए हो इतनी मेहरबानी करो, दरवाजे के अंदर तक मेरे बाप का जनाजा ला के रख दो, इसलिए कि मेरे पास शोहर की इजाजत नहीं है, मैं दरवाजे से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। जैसी इतनी बात बच्ची ने कही है, लोग आगे बढ़े, बच्ची के जनाजे को, बाप के जनाजे को उठाया और बच्ची के दहलीज पे जाके रखा। सहन में बाप का जनाजा लाया गया, बेटी की चीख निकल गई, रोई, आके उसके बाद बाप का माथा चूमा और उसके बाद कदमों में आई, तलवे चूमे और उसके बाद कहा था, या अल्लाह तू खूब जानता है ये मेरे रिश्तेदार का जनाजा नहीं है, ये मेरे खानदानी का जनाजा नहीं है, ये मेरे कोई करीब का ताल्लुकात वाला नहीं है, मेरे मालिक तू खूब जानता है ये मेरे बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, ये उसका जनाजा है जिसने लुक में करके बेटी को खिलाया था, ये उसका जनाजा पड़ा है जिसने कांधे पे बिठा करके मुझे चलना सिखाया था, ये उसका जनाजा है मेरे मालिक जिसने मुझे सीने से लगा करके पाल पोस के बड़ा किया था। लेकिन मेरे अल्लाह तू खूब जानता है, इसने मुझे देखने के लिए बुलाया, ए अल्लाह मैं न जा सकी, मेरे परवरदिगार तू खूब जानता है मैंने तेरे महबूब की रजा के लिए बाप की रजा को कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर, इतनी बात बेटी ने रो के कही थी और उसके बाद फिर जनाजा ले जाया गया है। कुछ दिन के बाद लोगों ने ख्वाब में देखा कि यही बाप जन्नत की बहारों में टहल रहा है। किसी ने कहा था, यार सच बता तू इतनी आसानी से जन्नत में कैसे पहुंच गया? तो इस बूढ़े ने कहा था कि अमल तो बहुत बुरे थे, गुनाह ही गुनाह थे, लेकिन जब कयामत में जब मैं रब की बारगाह में आया और हिसाब और किताब का मामला हुआ तो रब ने फरमाया, सुन तेरी बेटी जिसको तू रोता छोड़ करके आया है, उसने महबूब की रजा के लिए तेरी दी हुई तालीम के मुताबिक अपने बाप की रजा को कुर्बान कर दिया। जा, हम तेरी बेटी से इतने राजी हो गए हैं, इतने राजी हो गए हैं कि हमने तेरी बेटी को भी जन्नती बना दिया है, उसके सदक़े में तुझको भी जन्नती बना दिया। साहिबो, जब बेटियां बापर्दा होती हैं तो बाप भी बख्शे जाते हैं। मेहरबानी करो, बेटियों को पर्दे की तलकीन करो, अपने बच्चों को पर्दे के बारे में सिखाओ, समझाओ ताकि वो पर्दा करें। वो जवानों मेहरबानी करो, किसी की बेटी का जीना दुश्वार ना करो। बहुत आसान समझते हैं, कोई कहता चिल्लों में जन्नत है, कोई कहता इत्काफ में जन्नत है, कोई कहता नहीं जी हज कराओ जन्नती हो जाओगे। साहिब याद रखना, अगर दिल तोड़ के 1000 हज भी कर लोगे अल्लाह मुंह पे मार देगा। किसी को सता के तुम पूरी जिंदगी मदीने में गुजार दो, रब को तुम्हारी वो जिंदगी प्यारी नहीं है। हाँ जवानों, अगर जन्नत में जाना चाहते हो किसी गरीब बेटी का सहारा बन जाओ, किसी गरीब का सहारा बन जाओ। और यार दौलत की नीयत से शादी मत करो, ये सोच के निकाह करोगे कि हम इससे निकाह कर लें हम अमीर हो जाएंगे, तो उस वक्त तक मौत नहीं आएगी अल्लाह जब तक तुमको भिखारी नहीं बना देगा। हाँ, नेक सीरत लड़की तलाश करो, पारसा बेटी ढूंढो, पर्दे वाली लड़की तलाश करो, भले गरीब की हो लेकिन मुस्तफा की सच्ची वफादार होनी चाहिए। ऐसी बेटियां तलाश करो और साहिब गरीब की बेटी का हाथ थामो। वो यार क्या है तसव्वुर, इस्लाम में बारात का तसव्वुर नहीं है। कई सौ लोग बारात में जा रहे हैं, जमीन उखाड़ के फेंक दी लड़की वाले की, हालत खराब है। जैसी बारात आने का वक्त होता है ना तो लड़की वाला परेशान होता है, मौसम कोई भी हो माथे का पसीना साफ करता है, वो कहता फिरता है यार कमी रह जाए तो माफ कर देना, कमी हो जाए तो माफ कर देना, ये बेटी वाला होता है। और मेरी कौम के जवानों, तुमसे एक बात और कह के गुजर जाना चाहता हूँ, मेरी बात समझ लीजिए। अगर कभी बेटी वाले के यहाँ तुम्हारी दावत हो तो अपने घर पे खाना खा के जाया करो और थोड़ा बहुत उसका दिल रखने के लिए वहां जाके खा लिया करो। कई दिन का खाना इकट्ठा जाके ना खाया करो। और एक की दावत होती है, एक को साथ बैठा के चल दिया करते हो, तुमने जाके पेट भर के खा लिया, 300 लोगों की बारात आई, अगर उसने 300 को खाना खिला दिया, 2 का खाना कम पड़ गया तो 300 का खाना पानी फिर जाया करता है और 2 बदनाम कर दिया करते हैं बेटी वालों को। मेहरबानी करो, अगर किसी बेटी वाले के घर पे दावत हुआ करे तो मेहरबानी कर
करना कि बेटी के घर पे अपने घर से खा के जाया करो, जितनों की दावत हो उतने ही जाया करो। तुम्हें नहीं मालूम है जब बेटी वाले के दुकान पे बारात खाना खाया करती है तो कभी इधर चक्कर लगा रहा है, कभी उधर चक्कर लगा रहा है, और बार बार दिल में कह रहा है या अल्लाह इस बाप की लाज रख लेना, इस बाप की बेटी को इज्जत से रुखसत करा देना, या अल्लाह किसी चीज में कमी ना हो जाए, या अल्लाह बरकत दे देना। ये गरीब बेचारा चक्कर लगा रहा है, तरह तरह के रब की बारगाह में रो के इल्तिजाएं कर रहा है। हाँ हाँ साहिब, गरीबों के मददगार बना करो, घर से खा के जाया करो, और ये सोच के खा के जाया करो हम यहाँ खा के जाएंगे ताकि गरीब पे बोझ कम हो जाए, गरीब पे दबाव कम हो जाए। और यार बारातों में 500 लोग लेके ना जाओ, 300 लोग लेके ना जाओ, सिर्फ अपने बेटे को ले ले, 2-4 जिम्मेदार लोग ले ले, और लेकर के किसी बहन बेटी के गरीब के दरवाजे पे चला जा और जाके कह दे कि तेरे दरवाजे पे मैं बारात लेकर के नहीं आया, मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत लेकर के आया हूँ। इज्जत के साथ अपने बेटे की बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ कर दे, सिर्फ बेटी लेकर के आ। मैं ये नहीं जानता हूँ कि जब तू गरीब की बेटी को खाली हाथ लेकर के आएगा तो ये दुनिया वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ जब तू गरीब की बेटी को इज्जत से अपने घर की इज्जत बनाएगा और वो मुस्कुराएगी, खुदा की कसम तू घर में बाद में आएगा, मदीने वाले का सलाम पहले पहुंचाया जाएगा। अगर चाहते हो मुस्तफा राजी हो तो मुस्तफा की उम्मत की गरीब बेटियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। और ये जो बला चली है ना मुरव्वजा जहेज की, इस बला को खत्म करो, सिर्फ सुन्नत के मुताबिक जहेज दो ताकि गरीब बेटियों का जीना दुश्वार ना हो, आसान हो जाए। बात समझ के मेरी इतनी बातें जो मैंने कही है। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अपने आप को महबूब की जिंदगी के सांचे में ढालिए साहिब, सांचे में ढालिए। जवानों अपने हर काम में मुस्तफ़ा की रजा तलाश करो, मुस्तफ़ा को राजी करने की कोशिश करो। याद रखो अगर मदीने वाला राजी हो जाएगा तो काबे वाला भी राजी हो जाएगा। हाँ, नबी से सच्चा प्यार करो, नबी से सच्चा इश्क करो। जवानों उठते बैठते नबी की अदाओं को अपनाओ, नबी के तरीके को अपनाओ, नबी के किरदार को अपनाओ। और मैं आज यहाँ आया हूँ, काश ऐसा हो जाए मेरी इतनी देर की गुफ्तगू की किसी भी जवान पे इतना असर हो जाए कि वो आक़ा करीम की रजा के लिए, अपने रब की रजा के लिए इतना अहद कर ले कि हम किसी से जहेज मांग के, बोलो मांग कर, क्यों नहीं बोल रहे हो कि जेबें काटनी है क्या किसी की? जहेज मांग कर नहीं लेंगे, और जो लेंगे अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करेगा। ये भी लिख लेना। अगर तुम्हारी वजह से कोई गरीब रोया ना तो ये मत सोच लेना गरीब लावारिस है, ये मत सोच लेना कोई मुफलिस लावारिस है। खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया जिसका कोई वारिस नहीं उसका मदीने वाला मुस्तफा वारिस है। अगर किसी अमीर के जुल्म की वजह से गरीब रोया तो किसी को खबर हो ना हो मदीने वाले मुस्तफा को खबर हो जाती है। और मेरे नबी ने फरमाया मेरे उम्मती के पैर में कांटा चुभ जाए तो उम्मती को दर्द बाद में होता है, मदीने वाले को दर्द पहले हो जाया करता है। मेहरबानी करो यार, 4 दिन की जिंदगी है। आज आए दिन मस्जिदों से जनाजों के ऐलान होते हैं, कोई कहता फला नहीं रहा, कोई कहता फला नहीं रहा। एक दिन वो भी आएगा कि लोग हमारा नाम लेके मस्जिद से कहेंगे आज फला नहीं रहा है। इससे पहले कि मस्जिद से हमारा ऐलान किया जाए, साहिब अपने आप को बदलो, अपने तरीके बदलो, अपने आप को मुस्तफ़ा का सच्चा आशिक बनाओ और नबी से ऐसा इश्क करो जैसा इश्क मुस्तफ़ा के बिलाल ने किया था। नबी से ऐसा इश्क करो जैसे मुस्तफ़ा के अबू बकर ने किया था। नबी से ऐसा इश्क करो जैसा नबी की उमर ने किया था। और ऐसा इश्क किया था खुदा की कसम उनकी जिंदगी की करवट करवट बोला करती थी कि तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस अल्लाह करीम मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आप थके ना हो तो 10 मिनट की फरमाइश और है, बैठ लेंगे 10 मिनट और हैं? अगर 10 मिनट और चाहते तो सारे अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और खड़े होकर जरा 10-10 कदम आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आओ करीब हो जाओ। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जो आज मिंबर की तरफ करीब हो रहा है अल्लाह उसको मदीने के करीब फरमा दे।
سبحان اللہ. آگے آ جائیے, آگے آ جائیے. اللہ سلامت رکھے. اللہ اکبر. بس 10 منٹ کی بات اور ہے, مجھے حکم دیا گیا ہے. کیا بات ہے بھائی, آ رہے ہیں؟ مہربانی کرو, میں نے کہا تھا قوم کی بیٹیوں, پردے کا اہتمام کرو, آخرت کی فکر کرو. اللہ اکبر. مصطفیٰ کا کردار سب سے اہم کردار ہے. آج اگر کسی غریب کی بیٹی نہ روتی ہے, کیا یہ سماج میں ہوتا نہیں کہ باپ زمینیں بیچ کے بیٹی کو دے رہا ہے؟ جہیز میں ہوتا نہیں ہوتا؟ کتنے باپوں نے گھر بیچ دیے اور خود کرائے کے مکان میں رہنے لگے, اور جب ان سے پوچھا گیا یہاں کیوں پڑے ہو, کہتے ہیں لڑکی والوں نے اتنا پیسہ مانگا تھا, دینے کے لیے کچھ نہ تھا. ایک بیٹی تھی, مکان بیچ کے دے دیا. بابا اب تو کہاں رہے گا؟ کہتا کچھ دن کی زندگی ہے, یوں ہی تیرے میرے بسیروں میں بسیرے ہو جائیں گے. یہ دن دیکھنا تھا مصطفیٰ کی امت کو, آج کا دن بھی دیکھنا تھا. خدا کی قسم مہربانی کرو, میرے نبی کی بارگاہ میں حاتم تائی کی پوتی آئی, اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ بولو, سارے زور سے بولے ہیں. دوپٹہ نہیں تھا. کہنے لگی حضور آپ بڑے لجپال ہو, مہربان ہو, کریم ہو, آپ کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں گیا. مسلمانوں کے نبی, میرے خاندان والوں نے میری ٹوپی, میرا دوپٹہ چھین لیا اور مجھے رسوا کر کے خاندان سے نکالا گیا. کیا آپ کی چوکھٹ سے ایک چادر مل جائے گی؟ میرے نبی نے اپنی مزمل والی چادر اتاری اور اس بیٹی کے سر پہ رکھی نا, تو صحابہ کہنے لگے حضور کس کو پہنا رہے ہیں مزمل والی چادر؟ اس نے تو آپ کا کلمہ بھی نہیں پڑھا, اس نے تو آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا, اور اتنی عظمتوں والی چادر اڑا رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا صحابہ چپ ہو جاؤ, بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے, چاہے کافر کی بیٹی ہو چاہے مسلمان کی بیٹی ہو. اللہ اکبر. یہ بیٹی کا احترام میرے نبی نے سکھایا. آج ہم ہی بیٹیوں کو پھانسی پہ چڑھنے پہ مجبور کر رہے ہیں. ہماری وجہ سے بیٹیاں موت کو سینے سے لگا رہی ہیں. یہ دن دیکھنا تھا مصطفیٰ کی امت کو. اور یار بھلے ہی جلد سے کم کرنا, لیکن نبی کے کردار کو اپنا لو, نبی کے طریقے کو اپنا لو. جلد سے زندگی میں 10 کم کر کے مر جانا, اور نبی کی 2 سنتیں اپنا کے زیادہ مر جانا. خدا کی قسم جب قبر میں پہنچو گے تو کوئی کہے گا رئیس کا جنازہ ہے, فرشتے کہیں گے رئیس کا نہیں, مصطفیٰ کی امت کے شہید کا جنازہ ہے. مگر شرط ہے ان کی سنت کو زندہ کر کے مرنا ہے. ہاں, ان کی سنت کو زندہ کر کے مرنا ہے. میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. یہ امت کا المیہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. آج ہمارے سماج کی یہ برائی تھی جو آپ کے سامنے مجھے رکھنا پڑی. اللہ توفیق دے, اور خدا کرے کسی غریب کی بیٹی پھر غربت کی وجہ سے نہ روئے. بولو انشاءاللہ. ارے کہہ دو زور سے انشاءاللہ. کسی غریب کی بیٹی یا اللہ غربت کی وجہ سے نہ روئے. میرے اللہ, جو بیٹیاں باپ کی دہلیز پہ غربت کی وجہ سے بیٹھی ہیں, پروردگار ان بیٹیوں کے نکاح کے غیب سے اسباب مہیا فرما دے. ان بیٹیوں کے نکاح کے اسباب مہیا فرما دے. یا اللہ جو بیٹیاں اپنے سسرالوں میں ہے, پروردگار ان کے مقدر اچھے فرما دے. یا اللہ ہر باپ کی بیٹی کا نصیب اچھا کر دے, ہر باپ کی بیٹی کا نصیب اچھا کر لے. اور صاحب کسی کی بیٹی کو ستایا نہ کرو, کسی کی بیٹی کو رلایا نہ کرو. ہر باپ کی بیٹی اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے. جب بیٹی رخصت ہوتی ہے نا تو باپ چھپ چھپ کے روتا ہے, ماں بھی چھپ کے روتی ہے. وہ بھائی جو کبھی کبھی لڑتے رہے وہ بھی چھپ کے روتے ہیں. اور یار گھر والے نہیں, خاندان والے روتے ہیں. تم نے دیکھا ہوگا ہم قربانی کے جانور کو سال بھر پالتے ہیں, پھر اس سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ جب ہم اسے ذبح کرنے کے لیے بھیجتے تو کہتے ہیں یار نظروں کے سامنے ذبح مت کرنا, اسے ہم نے 1 سال پالا, اس سے محبت ہو گئی ہے. اور یار جانور کو سال بھر پالو تو اس سے اتنی محبت ہو جاتی ہے. اور پھر بیٹی کو تو باپ 18 سال سینے سے لگا کے پالتا ہے, اس سے کتنا پیار اس کو ہوتا ہوگا. اور جب سسرال کے اندر بیٹی ستائی جاتی ہوگی تو باپ کے جگر پہ کیا گزرتی ہوگی, باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اور باپ بیٹی کا رشتہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے صاحب.
एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका नबी की बारगाह में बैठी हुई है, अचानक हजरत फातिमा ज़हरा नबी की चौखट पे आई। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था, या रसूल अल्लाह, वो देखो आपका जिगर का टुकड़ा आ गया है। इतनी बात कही थी, या रसूल अल्लाह, आपके जिगर का टुकड़ा आ गया है। मेरे नबी उठ के खड़े हो गए, बेटी के लिए उठ के खड़े हो गए और बेटी का इस्तकबाल किया। हजरत फातिमा करीब आई, मेरे नबी ने हाथ छूमे, फरमाया, फातिमा बेटी, अचानक कैसे आना हुआ, कोई खबर तक नहीं भेजी, अचानक आ गई। कहने लगी, बाबा जरा बैठिए। सरकार बैठे, अपनी जगह पे हजरत फातिमा को बैठाया। आओ तुम्हें रिश्ता बता रहा हूँ, बाप बेटी का रिश्ता क्या होता है। जब बैठे ना, मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा अचानक कैसे आना हुआ। जैसे इतनी बात कही ना, अचानक कैसा हुआ आना हुआ, नबी की बेटी ने अपने दुपट्टे का एक कोना पकड़ा जिसके अंदर गांठ लगी हुई थी। आपने गांठ खोलना शुरू की। नबी फरमाते, फातिमा इसमें है क्या। अल्लाह अकबर, जैसी गांठ खुली ना, उस दुपट्टे के अंदर एक रोटी रखी हुई थी और छोटा सा टुकड़ा टूटा हुआ रखा हुआ था। अल्लाह अकबर, जैसी खुली, आका फरमाते, फातिमा ये क्या है। मेरे नबी की बेटी ने कहा था, बाबा आज 3 दिन के बाद फातिमा को एक रोटी मिली थी और दिल ने भूख की वजह से ये कहा, फातिमा जल्दी खा ले। कहती जल्दी से मैंने लुकमा तोड़ा, जैसी मुंह के करीब लाई, मेरे दिल में ख्याल आया, फातिमा तूने तो 3 दिन से नहीं खाया है, खुदा जाने तेरे बाप ने कितने दिन से नहीं खाया होगा। कहती, बाबा जी इतने ख्याल का आना था, ये लुकमा वहीं रुक गया, मेरे मुंह तक नहीं पहुंचा। अब्बा जी मैं रोटी लेके आ गई हूँ। मेरे नबी ने इतना सुना, चश्मा ने नबूवत बरसने लग गए। आका करीम ने रोटी हाथ में ली है, 2 टुकड़े रोटी के किए हैं, आधा टुकड़ा अपनी गोद में रखा है, आधा टुकड़ा हजरत फातिमा की गोद में दिया और फरमाया था, फातिमा तूने 3 दिन से नहीं खाया है, तेरे बाप ने तो 7 दिन से एक लुकमा भी नहीं खाया है। अल्लाह अकबर, ये रिश्ते होते हैं बाप से बेटियों के। और जवानों, किसी की बेटी का दिल ना दुखाया करो, किसी की बेटी को सताया ना करो, बल्कि कोशिश किया करो कि दूसरों की बेटी का ख्याल किया करो। आज तुम गरीबों की बेटियों की इज्जत कर लो, कर अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जतों की महराज अता फरमा देगा। हाँ, अगर चाहते हो मुआशरे में तुम्हारी बेटियों को इज्जत मिले तो तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, और अगर तुम दूसरे की बेटी को इज्जत नहीं दोगे और सोचोगे तुम्हारी बेटियों को इज्जत मिले, तो फिर सोच लेना तुम कड़वा बोकर के मीठे की उम्मीद कर रहे हो। मेहरबानी करो, मुआशरे को बेहतर करो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आका करीम की जिंदगी अपनाइए, उनके किरदार को सीने से लगाइए। और साहिब, कोड़ी होके मर जाओ, गरीब होके मर जाओ, मोहताज होके मर जाओ, अपाहिज होके मर जाना, लेकिन मुस्तफ़ा का गद्दार होके मत मर जाना। जब भी मरो आका का वफादार बन के मरना, उनका इश्क दिल में लेके मरना, ताकि जब कब्र में पहुंचो फरिश्ते तुमसे पूछे तुम कौन हो। मुस्तफा हाथ पकड़ के कहते हैं, फरिश्तों इससे ना पूछो, मैं बताता हूँ ये कौन है, ये मेरा वफादार है, सारी जिंदगी ये मेरे इश्क में तड़पता रहा है, आज मेरे कदमों तक आ गया है। फरिश्तों सो लेने दो, जब तक मैं हूं इससे कोई हिसाब नहीं ले सकता है। बस मेहरबानी करो, जिंदगी को आका करीम की वफा के सांचे में ढालिए, अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा के इश्क के सांचे में ढालिए। बस अल्लाह करीम हमारे इमरान भाई और इनके तमाम साथियों को मुस्तफ़ा के फैज़ान से माला माल फरमाए और ये अजीम कॉन्फ्रेंस पूरी ज़िंदगी से करने की तौफीक अता फरमाए। सारी ज़िंदगी जवानों ये मशगला मत छोड़ देना, पूरी ज़िंदगी नबी के जिक्र की महफिल सजाते रहना और इस अमल को अपनी पहचान बना लेना, ताकि क़यामत के दिन ये कमेटी वाले जलसे वालों के नाम से पुकारे जाएं, मुस्तफ़ा के जिक्र के नाम से पहचाने जाएं। और जब मुस्तफ़ा के जिक्र के नाम से पहचाने जाएंगे तो खुदा की कसम फिर देखना, निगाह मुस्तफा की होगी, करम खुदा का बरसने लग जाएगा, अमल पाप भी होंगे, एक निगाह मुस्तफा की होगी, सारे गुनाहों को अल्लाह नेकियों में तब्दील फरमा लेगा। लेकिन शर्त यह है साहिब, मुस्तफा का होके मरना है, अपने नबी का होके मरना है, और नबी का वही होगा जो आका के बताए हुए कवानीन पे अमल करेगा, उनके बताए हुए उसूल पे अमल करेगा। जब तक जिंदा रहना है मुस्तफा का वफादार, बोलो सारे बोलो, मुस्तफा के वफादार बन के रहना है। अल्लाह करीम हमारी ज़बान को कबूल फरमा ले, हमारे बोलने में जो गलतियां हुई हो अपने हबीब के सदक़े में तमाम खताओं को माफ़ फरमा दे, बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने अगर दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला
لا الہ. کیا سوچ کے بیٹھے ہو؟ آج قسم کھا کے بیٹھے ہو کہ کچھ نہیں بولنا ہے؟ بڑے نہیں بولیں، صرف بچے پڑھیں یار. مجھے بچوں کے بیٹھنے میں خلوص دکھائی دے رہا ہے. ہاں بڑے تو شاید منہ دکھانے آئے ہو، بچے نبی کے پیار میں آئے ہیں. بچے پڑھیں کلمہ میرے ساتھ سارے مل کے، اللہ توفیق دے تو بڑے پڑھیں، لیکن بچے بآواز بلند پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بچوں جب گھر جاؤ نا، ماں کے قدم چوم لینا اور چوم کے کہنا ماں تیرے دودھ کا کمال تھا، جب دنیا سو رہی تھی میں تیرے نبی کے محفل میں بیٹھ کر کے مدینے والے کی باتیں سن کے آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ بچوں تمہارے ماں باپ کو سلامت رکھے. اس بستی میں رہنے والے اللہ ہر فرد کو سلامت رکھے جو نبی کا وفادار ہے. اراکین کمیٹی کو مولا